Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. And in the previous class, in one of my previous class, I discussed about the association rule mining, but we are not working with the program. All of you remember this? All of you forget what is association rule mining? At first, we want to show how to write a program for association rule mining. Then we want to discuss about the model, how to use model in any type of application, like web application, maybe in case of desktop application. Some of you are already working with desktop application. Previously, I recap this. Previously, I discussed about this algorithm. One of the best algorithm we use for different type of multiplex, supermarket, etc. And I think all of you know that if you go through different shopping website, at that time they display the popular product. How they display the popular product? Don't think that they display the popular product based on the number of product sales from the business house. No. Actually, popular product, the popularity of any product depends on the buying style of the customers. That's why association rule mining, in association rule mining, there are different types of algorithm. Here we discuss about the a priori algorithm, one of the best algorithm for calculating the popular product. When customer buy the products, at that time customers sometimes may buy multiple products, means combination of products in every transaction. मतलब जब कस्टमर बाई करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि एवरी टाइम एक ही प्रोडक्ट बाई करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाई करता है बेस्ड ऑन द buying style of the customer. I repeat once again, association rule mining is a technique to identify the relation between different items. कि जैसा मल्टीपल कस्टमर्स जब प्रोडक्ट बाई करता है, मल्टीपल प्रोडक्ट बाई करता है, तो बेस्ड ऑन द बाइंग स्टाइल हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? We calculate the relation between different products. मतलब एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएगा तो दूसरा प्रोडक्ट खरीदने का चांस कितना है? Based on that, we think about different type of business campaign. We arrange the products in shopping supermarket sale. We create 2-in-1 packet. We provide different type of discount percentage. Take an example of a supermarket where customers can buy variety of items. Usually, there is a pattern in what the customers buy. कस्टमर कैसे बाई करेगा उसका एक पैटर्न है, क्या क्या प्रोडक्ट बाई करेगा. For instance, mother with babies buy baby products such as milk and diapers. Damsels may buy makeup items, whereas bachelors may buy beers and chips, etc. In short, transactions involve a pattern. Every transaction there is a pattern. So more profit can be generated if the relationship between between the items purchased in different transactions can be identified. So as a manager, as a business analyst,
we have to analyze this. We have to analyze the different buying style, buying pattern of different customers. And if we identify the relation between different items based on the transactions, then we plan many things. For instance, for example, if item A and B are brought together more frequently, then several steps can be taken to increase the profit. For example, A and B can be placed together so that when a customer buys one of the product, he does not have to go far away to buy the other product. मतलब A और B दो प्रोडक्ट है कि हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं जब कस्टमर्स बाई कर रहे हैं तो A प्रोडक्ट के साथ मैक्सिमम टाइम बी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो ए बी प्रोडक्ट साइड बाय साइड सेल्फ में प्लेस करेंगे तो कस्टमर को बाई करने के लिए ज्यादा दूर जाने का जरूरी नहीं है और मतलब मे बी ए प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया तो वो डिस्प्ले आ जाएगा बी प्रोडक्ट का तो इससे फायदा क्या है कि मे बी एक कस्टमर आया ए प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो उसका भी तो मन में आएगा ठीक है बी प्रोडक्ट एक बार देख ले सो वी अरेंज द प्रोडक्ट इन सच ए वे it will help us to promote our business. People who buy one of the products can be targeted through an advertisement campaign to buy the other. ये भी कर सकते हैं. Collective discount, मतलब 2-in-1 packet. Collective discount can be offered on these products if the if the customer buys both of them. तो ये 2-in-1 एक साथ 3 प्रोडक्ट को पैकेट बनाते हैं. Both A and B can be packaged together. The process of identifying an association between products is called association rule mining. An a priori algorithm for association rule mining. Different statistical algorithms have been developed to implement association rule mining. An a priori is one such algorithm. In this algorithm, what we calculate actually we calculate the support, confidence, and lift of the product. What are these? What is support? Suppose we have a record of 1000. मतलब 1000 कस्टमर्स का जब कस्टमर बाई करता है वो तो डेटाबेस में स्टोर होगा बिलिंग के लिए तो वो सब ट्रांजैक्शन ऐसा 1000 कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन डिटेल्स हम लोगों के पास है एंड वी वांट टू फाइंड द सपोर्ट कॉन्फिडेंस लिफ्ट फॉर 2 आइटम्स मे बी बर्गर एंड केचप out of 1000 transaction 100 contain ketchup while 150 can contain a burger so 100 ऐसा 100 ट्रांजैक्शन में केचप है और 150 ट्रांजैक्शन में बर्गर है लेकिन आउट ऑफ 150 ट्रांजैक्शन मतलब जितना सारा कस्टमर 150 कस्टमर बर्गर बाई किए थे आउट ऑफ 150 ट्रांजैक्शन वेयर बर्गर इज परचेज 50 ट्रांजैक्शन कंटेन केचप एज वेल बर्गर का साथ ऐसा 50 कस्टमर केचप भी खरीदा है Using this data, we want to find the support, confidence, and lift. Support refers to the default popularity. Actually, support मतलब popular product. Default popularity of an item can be calculated by finding. कैसे calculate करेंगे? Number of transactions containing the particular item divided by total number of transactions. जैसा देखो, maybe 1000 transaction है. For instance, if out of 1000 transactions, 100 transactions contain ketchup, then support for ketchup can be calculated. Ketchup का support कितना है? 100 divided by 1000, that is 10%. 10% popularity. इतना popular नहीं है. तो ऐसा हर एक प्रोडक्ट का पॉपुलैरिटी चेक करने के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे? सपोर्ट. Confidence refers to the likelihood that an item B is also bought if item A is bought. Likelihood probability. In case of Naive Bayes theorem, we discuss about it. What is confidence?
Confidence refers to the likelihood that an item B is also bought if A is bought. It can be calculated by finding the number of transactions where A and B are bought together divided by the total number of transactions where A is bought. मतलब confidence calculate finding the number of transactions where A and B bought together divided by total number of transactions where A is bought. तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद क्या पता चलेगा कि an item B is also bought if A is bought. मतलब A जब खरीदने के लिए आएगा तो B खरीदने का चांसेस कितना है B प्रोडक्ट. That is calculated over here in this way. Coming back to our problem, we had 50 transactions where burger and ketchup were bought together. While 150 transactions burger are bought, then we can find likelihood buying ketchup. मतलब ketchup खरीदने का चांस कितना है when burger is bought. तो उसको कैसे लिखते हैं? Confidence of burger arrow ketchup. ketchup खरीदने का चांस कितना है? कस्टमर्स बर्गर खरीदने के लिए आएगा. ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग बोथ बर्गर एंड केचप. तो जैसा हम लोगों का एग्जांपल में देखे थे कि बोथ खरीदा है, ऐसा कितना ट्रांजैक्शन है? 50 डिवाइडेड बाय ट्रांजैक्शन ऑफ कंटेनिंग ए. मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ कंटेनिंग अब केचप. तो देखो वो डिवाइड किए 50 बाय डिवाइडेड बाय 150 तो 33.3%. You may notice that this is similar to you may notice that this is similar to what you would see in the naive Bayes algorithm. However, two algorithms are meant for different types of problems. Next, how to calculate the lift and what is lift? Lift refers to the increase the ratio of sale of B. मतलब कितना रेशियो इंक्रीज कर सकते हैं, लिफ्ट कितना हो सकता है. कैसे लिखते हैं? लिफ्ट ए एरो बी मींस इंक्रीज द रेशियो ऑफ सेल ऑफ बी. मतलब सेकंड प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज कर सकता है व्हेन ए इज सोल्ड. तो ऐसा लिखते हैं. जैसा देखिए लिफ्ट ए एरो बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉन्फिडेंस ए एरो बी डिवाइडेड बाय सपोर्ट. मतलब लिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? सपोर्ट. देन कॉन्फिडेंस ऑफ ए टू बी. मतलब बी जब खरीदेगा ए खरीदने का चांसेस कितना है, तो वो दो वैल्यू देके डिवीजन करें. सो लिफ्ट ए टू बी मतलब जब बी खरीदने के लिए आएगा तब ए प्रोडक्ट सोल्ड करने का रेशियो कितना इंक्रीज कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस ऑफ ए टू बी डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ बी. So coming back to our burger ketchup problem, confidence of burger and ketchup क्या देखे थे? 33.3 divided by support of ketchup. मतलब केचप के लिए सब कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ. Support of ketchup, confidence of ketchup when a customer buy a burger, and then check the lift. Here the lift value is 3.33. तो 3.33 से कैसे पता चलेगा? Lift basically tells us that the likelihood of buying a burger and ketchup together is 3.3 times more than the likelihood of just buying the ketchup. A lift of 1, जब lift value 1 आएगा means there is no association between product A and B. If lift greater than 1 means the product A and B are more likely to be bought together. 1 से greater होगा. And if lift of less than 1 refers to the case where two products are unlikely to bought together. Unlike product मतलब कोई association नहीं है. Now we write a program. Steps involved
in a priori algorithm for large set of data. Like I download this data set from the website, stored data. If you check the data set in one of my previous session, I show you the data set. Based on that data set, we want to write a program. Remember one thing, every row represent a transaction of a single customer. एक रो एक कस्टमर का ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट कर, यहाँ कोई हेडिंग नहीं है कि फर्स्ट कस्टमर श्रिम्प, almonds, avocado, etc. Second customer burger, meatballs, eggs. Third customer buy only chutney. Fourth customer buy turkey and avocado. Fifth customer mineral milk, etc. From that data set, we want to write a program. Using that program, we want to calculate the support, confidence and lift for every product. तो देखो यहाँ thousands of customers transactions है और thousands of items भी है. तो देखो इतना सारा items का support, confidence, lift calculate करने से तो कोई फायदा नहीं है. तो क्या करेंगे? तो हम लोग जब प्रोग्राम लिखेंगे उसमें कुछ मिनिमम वैल्यू कि जितना सारा प्रोडक्ट का मिनिमम सपोर्ट फिक्स कर देंगे, कुछ वैल्यू देते कि इससे ज्यादा जितना सारा प्रोडक्ट का सपोर्ट है वो सब प्रोडक्ट का एसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे. जितना सारा प्रोडक्ट सेल्स नहीं हो रहा है तो वो लेके तो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है. So when we write a program at that time, what we do, for large sets of data, there can be hundreds of items in hundreds of thousands of transactions. The a priori algorithm tries to extract rules for each possible combination of items. Don't think that every time we calculate the support, confidence and lift or association between two items. No. We can calculate the association between 3 items, 4 items also. And this a priori algorithm automatically done all the things. No need to do anything manually. Just like a magic, it will calculate everything. For instance, lift can be calculated for item 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, and then 2 and 3, 2 and 4, and then combination of items. As for example, item 1, item 2, item 3. Similarly, item 1, item 2, and item 4. ऐसा भी association वो calculate करेगा. And we can customize this. As you can see from the above example, this process can be extremely slow due to number of combinations. थोड़ा सा तो slow होगा. To speed up the process, we need to perform the following steps. कि हर एक item का support calculate नहीं करेंगे. Set a minimum value for support. एक minimum value set कर देंगे. तो वो minimum value से ज्यादा जितना सारा item है, तो वो सब item का एसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कम हो जाएगा. तो जो मिनिमम सपोर्ट सेट करेंगे मतलब क्या है, जो उससे कम जितना सारा सपोर्ट वाला आइटम है तो वो सब आइटम का कैलकुलेट करने का कोई जरूरी नहीं है. दैट्स व्हाई सेट ए मिनिमम वैल्यू फॉर सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस. This means that we are only interested in finding the rules for the items that have certain default existence and have a minimum value for co-occurrence with other items. Then extract all the subsets having higher value of support than minimum threshold. Okay, and select all the rules for the subsets with confidence value higher than the minimum threshold. Minimum value से ज़्यादा जितना. Order the rules by descending order of lift. Implementing a priori algorithm with Python enough. अच्छा, just wait. Let's see. Here I download this from Google Drive, this link. I copy paste this link from where I download this data set. There are 7,500 transactions. Let's see my data set. If you check, there are 7,500 data. Means rows. Oh.
Let's see. देखो 7501. So total number of rows 7501. There is no heading. Let's see the program. Acha, remember one thing, students. This a priori algorithm is defined in this module. The module name is a priori, and the a priori algorithm is implemented in the class a priori. This a priori module, APYORI, a priori module is not by default available in Anaconda. Like TensorFlow and Keras, all of you install this module separately. In the same way, you have to install this module at first. Remember one thing. Same thing, using pip command or using conda command, you have to install this module in your Anaconda editor or any other editor. Because this module is not by default available in our Python environment. And I think all of you know the meaning of NumPy as NP, Matplotlib, PyPlot as PLT, Pandas as PD. And here we use a priori algorithm. This a priori algorithm is implemented in a class, implemented as a class in the module a priori. That's why you have to install this module in your Anaconda system or Spider. At first, we read the data from this CSV file. What is the name of our CSV file? Let's see. The CSV file name is store_data.csv. That is our CSV file where all the data are stored. But remember one thing, student, here in this CSV file, there is no heading. That's why sometimes you got the data without header or without heading, without header row. So at that time, how to read the data using Pandas data frame? The Pandas PD dot read CSV function name is same. Read the data from that CSV file, comma, next parameter. Parameter name is header, and we set equal to none. None. Why? Because there is no header available. That's why we have to pass the parameter header equal to none. Otherwise, what is happening over here? कि header equal to none नहीं देंगे तो क्या होगा? तो फर्स्ट रो जो है वो हेडिंग जैसा बिहेव कर लेगा. तो फर्स्ट रो तो एक्चुअली हेडिंग नहीं है, वो एक्चुअली क्या है? वो भी एक ट्रांजैक्शन है. जब कोई डेटा सेट में कोई हेडिंग नहीं है तो वो डेटा सेट से और वो फाइल से डेटा को कैसे रीड करेंगे? यूजिंग हेडर इक्वल टू नन and store it in the variable store_data. If we check the store_data from the variable explorer, this one, just double click on that. Let's see, the heading is like this because there is no heading. First row, second row, third row. तो यहाँ देखो एक एक रो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक एक रो एक एक ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मतलब देखो जब ये डेटा को एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक्चुअली इन ए सिंगल रो, ये एक पर्टिकुलर रो में यहाँ लिस्ट ऑफ आइटम्स है. तो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स ये डेटा फ्रेम से व्हाट इज द store_data इज द डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम में कितना रो है? 7501.
तो मतलब 7501 ट्रांजैक्शन। हम लोग यहाँ क्या करना चाहते हैं? एसोसिएशन बिटवीन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोगों को क्या करना चाहिए? हर एक ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल रो, a single row represent a single transaction. In every transaction we have to, for every transaction we have to extract the list of items. कि एक एक रो में देखो, ये तो लिस्ट नहीं है, लिस्ट ऑफ आइटम्स जैसा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो एक एक लिस्ट में क्या मिलेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स मिलेगा। दैट्स व्हाई व्हाट वी डू नेक्स्ट, लेट्स सी, we declare an empty list. I think all of you know Python. What is this? A list. There is no item, matlab empty list, and store it in a variable record. Now what we do, देखो, for I in range 0 to 7501, तो ये जो range, what is the functionality of range function? Range function, if you forget, let's see, for I in range 5, maybe 0, 5, print बोलिए, it will generate a list of numbers. तो देखो ये रेंज फंक्शन क्या करेगा? लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड विथ 7500। तो फॉर लूप कितना बार चलेगा? 7500 टाइम्स। तो मतलब यहाँ जो stored data है, if we check the dimension of stored data, let's see how many rows are there. 7501। तो 0 से 7500, तो कितना बार फॉर लूप चलेगा? 7501 टाइम्स। That's why we iterate the loop for 0 to 7500 times. Means we iterate the for loop for every row in the data set. This is our this is our data sets. For every row we iterate the for loop, and let's see what we write over here. In that case we have to write from the end, we have to read from the end. देखो for j, देखो first time, this is outer for loop for I in range 0 to 7501, 0, 7501। तो मतलब means first time what is the value of I equal to 0. For loop executed for 0th row, second time 1th row, in this way. देखो when a for loop is the first row, at that time what we do, देखो for j in range 0 to 20 means this for loop executed for 0 to 19, मतलब 20 times. Why? If we check the data frame, how many columns are there? Let's see, there are 20 columns. देखो 0 to 19, मतलब यहाँ हर एक रो में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, कभी कभी कोई कस्टमर 20 आइटम्स भी खरीदा है। तो इसलिए देखो जो outer for loop, ये outer for loop execute, why this for loop executed for every row, और हर एक रो के लिए जब for loop एग्जीक्यूशन हो रहा है तब एक एक रो में मैक्सिमम कितना कलम्स है? 20 कलम्स है। तो इसलिए देखो ये for loop आइटरेट कर रहा हूँ 0 to 19, तो 0, 20। एवरी टाइम व्हाट वी डू, देखो स्टोर डेटा, ये वेरिएबल नेम स्टोर डेटा डॉट वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट टाइम I इक्वल टू 0, और ये जो फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा? j इक्वल टू 0, I मतलब 0 0, देन 0 1, मतलब 0th रो का फर्स्ट टाइम फॉर फर्स्ट रो 0th रो का 0th कलम का वैल्यू
0th रो का देखो इनर फॉर लूप जो है, ये फॉर लूप, दिस फॉर लूप, तो ij, so I equal to 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2. In this way, we retrieve all the values one by one from the first row for first time and convert it into string. Every value like string, convert it into string and store it in a list. Because that's why this is enclosed by open and close square bracket. Because this is the start square bracket, this is the end square bracket. तो मतलब ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ आइटम क्रिएट करेगा. ओके, जब लिस्ट ऑफ आइटम क्रिएट करेगा एक एक रो के लिए, तो वो लिस्ट को क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड, रिकॉर्ड्स में अपेंड कर रहा हूं. तो इन दिस वे देखो हर एक रो के लिए, हर एक रो का, हर एक कॉलम का वैल्यू फेच करेगा, एक एक लिस्ट जनरेट करके वो लिस्ट में स्टोर कर रहा हूं, लिस्ट में अपेंड कर रहा हूं. So if we check records, let's see what is records. Oh. Now let's see. देखो फर्स्ट रो का लिस्ट ऑफ आइटम, shrimp, almonds, avocado, vegetable. सेकेंड रो बर्गर, मीटबॉल, एग्स, बर्गर, मीटबॉल, एग्स. बाकी सब नॉन, मतलब नॉट ए वैल्यू, नॉट ए नंबर, कोई वैल्यू नहीं है तो नॉन. सेकेंड रो और एक लिस्ट, इसमें सिर्फ चटनी है, लेकिन हर एक लिस्ट में 20 एलिमेंट्स है जिसमें वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो एन देख के रिप्रेजेंट हो रहा है. थर्ड रो देखो टर्की, एवोकाडो, टर्की एंड एवोकाडो. फोर्थ रो, तो मतलब क्या कर रहा हूं, हर एक ट्रांजैक्शन में लिस्ट ऑफ आइटम्स क्या क्या है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं डेटा फ्रेम से. So it will extract a list of item and generate a records. तो यहाँ देखो 7,501 transactions है, तो ऐसा 7,501. Let's see. तो 7,501 list generate होगा in this way. Now what we do? Next, in line number 13, we create an object. I think all of you know that when we use any AI approach in our machine learning program, at first we have to create an object of that class. तो ये जो a priori ये क्लास जैसा डिफाइन है, तो इसलिए क्या किया, वो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ. और पैरामीटर, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो पैरामीटर जैसा क्या पास कर रहा हूँ, देखो रिकॉर्ड्स, मतलब लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. एक एक लिस्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स है. देखो यहाँ क्या सेट कर रहा हूँ, मिनिमम सपोर्ट. यू कैन चेंज द वैल्यू हियर. इन माय प्रोग्राम एग्जांपल मे बी आई सेट 0.0045. तो मिनिमम सपोर्ट 0.0045 मतलब क्या है, यहाँ हम लोग जो एसोसिएशन ऑफ आइटम्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, जितना सारा आइटम्स का सपोर्ट वैल्यू मतलब the number of transaction for that particular item divided by total number of transaction. तो ऐसा मिनिमम सपोर्ट वैल्यू जितना सारा प्रोडक्ट का 0045 से ज्यादा है, वो सब प्रोडक्ट का एसोसिएशन कैलकुलेट करेगा. एसोसिएशन बिटवीन 2 आइटम्स, एसोसिएशन बिटवीन 3 आइटम्स ऑल्सो. सेम वे मिनिमम कॉन्फिडेंस, जितना सारा आइटम का मिनिमम कॉन्फिडेंस वैल्यू रिलेटेड विद अदर प्रोडक्ट 0.2 से ज्यादा है, तो वो सब आइटम का सब कुछ डिटेल्स हम लोग डिस्प्ले करेंगे. मिनिमम लीव वैल्यू 3 से ज्यादा होना चाहिए, और मिनिमम लेंथ मतलब मिनिमम बिटवीन 2 आइटम्स एसोसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे. दैट्स व्हाई मिनिमम लेंथ इक्वल टू 2. तो देखो जब एपरी एल्गोरिथम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एट दैट टाइम वी सेंड द रिकॉर्ड्स. यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसा previously when we are working with simple machine learning program, at that time we generate a feature and output, then split the data. But in case of that type of data set,
ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी अवेलेबल है, जैसा सेंटिमेंटल एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस, सेम जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो यहाँ भी देखो एफआईआर एल्गोरिथम में जब रिकॉर्ड्स, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तब क्या पास करना चाहिए, रिकॉर्ड्स, मिनिमम सपोर्ट वैल्यू, कॉन्फिडेंस वैल्यू, लिफ्ट वैल्यू एंड मिनिमम लेंथ। तो वो क्या करेगा, एक्चुअली इट विल ऑटोमेटिकली calculate the association rule process, execute the association rule process, calculate support, confidence and lift based on the value, based on the minimum value provided by our program. You can change the value also and store it in a variable association underscore rules. So here, what is association rules? Actually, association rules return an object. In this object, all the calculations are stored, but this object is not iterable. iterable नहीं है, तो इसलिए क्या किया है, जो एसोसिएशन रूल में जो भी डेटा स्टोर्ड है, all the stored informations are converted into list, typecast into list and store it in an association result variable. So let's see. Now we have to understood the architecture of the return result. That is association result. The variable type, this is a list of list. And how many items over here? देखो 48. मतलब ऐसा जो डेटा सेट मिला यहाँ 40, जो भी based on the buying style of the customer, based on the transaction of the customer, there are 48 items whose support, minimum support value 0.005, 0045, confidence value 0.2 and lift value 3. तो ऐसा 48 आइटम्स है। उसके बाद देखो जब हम लोग ये एसोसिएशन रिजल्ट ओपन करेंगे, इसमें डबल क्लिक कर रहा हूं, तो ये क्या है, तो देखो ये एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट है, हर एक लिस्ट में देखो क्या है, रिलेशन रिकॉर्ड अवेलेबल है, साइज 3, मतलब यहाँ एक एक लिस्ट जो है दैट इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, एक एक रो में क्या है और एक लिस्ट है, उसमें क्या है, उसका साइज क्या है 3। तो इसमें जब डबल क्लिक कर रहा हूं तो देखो क्या मिल रहा है, एक पर्टिकुलर यहाँ एक्चुअली फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर उसका नेम है, ओके, देन वो आइटम का सपोर्ट वैल्यू, तो मतलब देखो zeroth row, think that the association result is a list, इसका zeroth में एक लिस्ट है, लिस्ट में 01, देखो ये 1th वैल्यू इज द सपोर्ट वैल्यू, 2th में देखो यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ भी देखो और एक लिस्ट है, मतलब 20, देखो 20th एलिमेंट का जो वैल्यू है इसमें क्लिक करेंगे तो और एक नेस्टेड लिस्ट मिल रहा है। तो यहाँ देखो 2th में एक्चुअली कॉन्फिडेंस एंड 3th में एक्चुअली लिफ्ट वैल्यू है। तो मतलब आइटम नेम कहाँ मिलेगा, ये 0th हर एक रिकॉर्ड में, ये फर्स्ट, एक एक आइटम का रिकॉर्ड स्टोर करता है। 0th का अंदर और एक लिस्ट है जिसका 00 में वो दोनों आइटम का नेम है, एसोसिएशन जो कैलकुलेट किया था। 1th में सपोर्ट वैल्यू, तो 012th में और एक लिस्ट है, 0th लिस्ट, मतलब 202 में क्या है कॉन्फिडेंस, 203 में क्या है लिफ्ट। हाउ टू एक्सेस दिस, लेट्स सी।
समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा ये लूप क्यों चलाया। देखो, नाउ फर्स्ट टाइम वी आइटरेट अ लूप फॉर आइटम इन, सॉरी फॉर आइटम एक वेरिएबल इन एसोसिएशन अंडरस्कोर रिजल्ट्स। तो मतलब एसोसिएशन अंडरस्कोर रिजल्ट में देखो कितना एलिमेंट है, 48, मीन्स 48 लिस्ट एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट के लिए लूप चला रहा हूं। तो एवरी टाइम क्या कर रहा हूं, देखो पहले नेम फेच करना है। तो हर एक रो, ये रो जो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो का 0th में उस वो सब आइटम का नेम है। 2 आइटम है क्योंकि मैक्सिमम लेंथ 2 दिए थे, 0 और 1। तो देखो जब लूप चला रहा हूं ये फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो का 0th में क्या है, ये 0th में क्या है, वो नेम है, मतलब पेयर 2 आइटम्स है। तो वो पेयर कैसे मिलेगा, देखो आइटम 0 में क्या है, 2 आइटम का पेयर है। तो इसलिए क्या किया, देखो ऐसा स्टार्ट करना चाहिए एंड से, फॉर एक्स इन पेयर। तो पेयर में कितना वैल्यू है, 2 वैल्यू है। तो ये लूप 2 बार चलेगा, इच टाइम क्या करेगा, एक्स स्टोर करेगा, आइटम नेम को स्टोर करेगा। तो मतलब इट विल जनरेट अ लिस्ट ऑफ 2 आइटम्स। वो आइटम्स में स्टोर किया, उसके बाद मैं क्या प्रिंट किया, देखो प्रिंट रूल, देखो आउटपुट चेक करो, रूल श्रिम्प, देखो रूल आइटम 0 एरो, आइटम 1 मतलब श्रिम्प एंड फ्रोजन वेजिटेबल का सब एसोसिएशन चेक कर रहा हूँ। ऐसा 48 आइटम्स का अवेलेबल है। तो पहले जब आइटम्स चेक कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, देखो एसोसिएशन रिजल्ट में जितना सारा आइटम है लूप चला रहा हूँ, वो एसोसिएशन रिजल्ट का हर एक रो में जो वैल्यू है 0th, ये 0th में 2 आइटम है, 2 आइटम का नेम पेयर स्टोर है। तो इसलिए ये 2 आइटम का नेम एक्सेस किया। उसके बाद सपोर्ट कहाँ मिलेगा, देखो आइटम 0th में पेयर ऑफ नेम्स, लेकिन 1th में क्या मिलेगा, सपोर्ट। तो इसलिए देखो आइटम 1 सपोर्ट इक्वल टू आइटम 1। और यहाँ क्या प्रिंट किए हैं, देखो नेक्स्ट सपोर्ट। लेकिन कॉन्फिडेंशियल लिस्ट कहाँ मिलेगा, तो मतलब देखो ये 2th आइटम का 2th, नेक्स्ट लेट्स सी कॉन्फिडेंस, देखो आइटम का 2th, ये 2th, इसमें और एक लिस्ट है 2th लिस्ट में जब क्लिक कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, ये 0। तो 20 में क्या देख रहा हूं, और एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है जिसका 2th में कॉन्फिडेंस एंड 3th में लिफ्ट। तो इसलिए देखो यहाँ क्या लिखे हैं, आइटम 202 इक्वल टू दिस वैल्यू, आइटम 203 लिफ्ट वैल्यू। तो ऐसा जब प्रिंट कर रहा हूं तो क्या कर रहा है, हर एक आइटम का कॉन्फिडेंस, देखो आउटपुट देखो ऐसा 48 आइटम का कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट। So if we check the output, if we observe the output, हर एक आइटम का, जैसा देखो मिनरल वाटर में भी लास्ट आइटम मिनरल वाटर मिल्क, मिल्क का पॉपुलैरिटी कितना है 0.0045 32 समथिंग, मतलब अब 45% ऐसा कुछ होगा। ऑब्वियसली ऑल द वैल्यूज आर रिटर्न बेस्ड ऑन आउट ऑफ 7000, तो मतलब 45% ऐसा कुछ होगा। कॉन्फिडेंस मतलब मिल्क खरीदने का चांसेस कितना है जब मिनरल वाटर खरीदने के लिए आएगा, तो वो कॉन्फिडेंस है 0.28 समथिंग। लिफ्ट मतलब जब मिनरल वाटर खरीदने के लिए आएगा तब मिल्क सोल्ड करने का रेशियो कितना ज्यादा है, कि ऐसा आ रहा है 3 से ज्यादा।
तो मतलब क्या करना चाहिए, मिल्क के पास मिनरल वाटर का भी प्लेस करना चाहिए। तो ऐसा देखो, हर एक आइटम का सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट हम लोग चेक किए। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट का सपोर्ट सबसे ज्यादा है, दिस प्रोडक्ट विल बी द पॉपुलर प्रोडक्ट। तो जब वेब एप्लीकेशन जो लोग डेवलप करेगा, तो यहाँ जो वैल्यू हम लोग जनरेट करेंगे, वो वैल्यू रिट्रीव करके बेस्ड ऑन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सपोर्ट डिस्प्ले द पॉपुलर प्रोडक्ट। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना सारा आइटम का पॉपुलरिटी सपोर्ट 0.0045 से ज्यादा है, वो सब आइटम को डिस्प्ले करेंगे वेबसाइट में एट फर्स्ट, देन one by one. So in this way, for promoting the business, we calculate the support, confidence, and lift for finding the association between different product based on what? Based on the buying style of the customer. ऐसा नहीं है कि हम लोग डिसाइड करेंगे, नो। कि ऐसा नहीं है कि जो लोग, जैसा आप लोग भी तो कोई स्टूडेंट है जो बिजनेस करना चाहता है, तब जब बिजनेस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका मन में जो आया ऐसा करके आइटम को अरेंज कर देंगे, नो। बेस्ड ऑन द बाइंग स्टाइल ऑफ द कस्टमर वी थिंक अबाउट इट। क्योंकि वही तो क्रेज, जैसा जो टाइम में, जैसा समर सीजन में कुछ क्रेज चलेगा, विंटर में कुछ क्रेज चलेगा। हर एक सीजन में तो सेम प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, कस्टमर्स डिफरेंट बाइंग स्टाइल होता है। तो देखो ऐसा डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आइटम को अरेंज करना चाहिए फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल। कि बस डिग्री करने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ यू गॉट इट स्टूडेंट्स? एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? Now reply me all of you whether all of you got the topics or not. All of you got it students? Anyone, any doubts? सबको सुनाई दे रहा है? अच्छा, थैंक यू अंकित। एंड अदर स्टूडेंट्स? Only Ankit always reply me. But what about other students? Because I think all of you know that that is online session. So reply me always, or if anyone have any doubts, raise your question, ask me the question, sir हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन जनरेट कीजिए, तो हमको पता चलेगा कि हम जैसे बोल रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, अच्छा। So this is very important rule. Thank you Rakesh, Sumit, Poost and Ankit. Okay. अच्छा, तो देखो, till now in case of machine learning program we create different type of model, machine learning model. We calculate the predict different types of results. But remember one thing students, if we implement these things, obviously why we develop this in this console, obviously there is a cause. ऐसा तो नहीं है कि जो सिंपल यूजर जब ये सब मशीन लर्निंग मॉडल यूज करेगा, क्या ये स्पाइडर इंस्टॉल करके ऐसा करके प्रोग्राम आप दे देगा, रन करके चेक करेगा? नो। तो जैसा सिंपल यूजर जब यूज करेगा, वो लोग क्या करेगा? ऑब्वियसली दे वांट्स टू यूज सम यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब जैसा हम लोग जो एक्सेस करते हैं, जैसा वेब एप्लीकेशन में भी लॉग इन, रजिस्ट्रेशन। तो आपको बोलेंगे कि ठीक है रजिस्ट्रेशन करना है तो डेटाबेस में जाके इंसर्ट कर दो, आप इंस्टॉल कर पर मे बी वी आर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ यू से दैट कि हाँ सर इंसर्ट कर सकते। लेकिन इन केस ऑफ सिंपल यूजर, वो लोगों को तो सबको तो डेटाबेस आता नहीं है, फिर डेटाबेस एक्सेस करना भी डिफिकल्ट है, इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ये सब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। व्हाट आर दिस?
कि when we develop real life application, at that time there are different types of applications. Yes, sir. Mostly we use like desktop application, web application, mobile application. I think all of you know these things. जैसा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन है जो डेस्कटॉप में रन करता है, जैसा आप लोग तो कैलकुलेटर यूज किए थे कंप्यूटर सिस्टम में। ये जो कैलकुलेटर ऐप जब ओपन कर रहा हूँ, कहाँ ओपन हो रहा है? कैलकुलेटर जगह डेस्कटॉप में ओपन हो रहा है। तो ऐसा डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकता है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये भी तो किसी ने डेवलप किया। एक्चुअली ये सब बटन है, यहाँ कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस है जिसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द बटन। Then this, if we click on that, it will calculate the result. That is desktop application. वेब एप्लीकेशन तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, सबको पता है। और मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। मोबाइल एप्लीकेशन भी सबको पता है, जो एप्लीकेशन मोबाइल में रन करता है, एंड्रॉइड, iOS एक्सेट्रा। तो देखो, ये सब एक्चुअली जो मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, कस्टमर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कभी पॉपुलर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये सब मॉडल तो वेब डेस्कटॉप में इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो कैसे इंप्लीमेंट करें? ऑब्वियसली you have an idea about application, so I decide that कि अच्छा, tell me students, all of you know desktop application? All of you know? Please reply me. All of you know the desktop, how to develop desktop application using Python? Please reply me whether all of you know to develop a desktop application using Python like PyQt, maybe Tkinter, anyone? Huh? Please reply me. जब आता नहीं है तो नो लिखिए। अच्छा, राकेश लिख रहा है कि ये सर। बाकी सब स्टूडेंट, बाकी सबको आता नहीं है। जब आता नहीं है तो नो लिखिए। टीके इंटर, हाँ टीके इंटर ओके। विकास टीके इंटर आता है लिखा। बाकी सबका अच्छा ठीक है, मैं टीके इंटर एकदम दिखा के करूंगा। हाँ, तो देखो, जब एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मे बी जैसा एक सिंपल मशीन लर्निंग प्रोग्राम मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी सोचिए कि सिंपल लिनियर रिग्रेशन, एकदम सिंपल इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि समझ में आ जाएगा। सिंपल लिनियर रिग्रेशन जो सैलरी प्रेडिक्ट किया था। तो देखो, ये जो मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, मशीन लर्निंग प्रोग्राम में हम लोग लिनियर रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करके डेटा को फीड करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग के लिए कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद प्रेडिक्टेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें एरर कितना है, एक्यूरेसी कितना, डिफरेंट मॉडल एक्यूरेसी ये सब चेक करते हैं। तो ये प्रोग्राम को पूरा एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन में अटैच कर देंगे। तो देखो, हर एक कस्टमर जब प्रोग्राम को रन करेगा, फिर से एक बार ट्रेनिंग होगा, टेस्टिंग होगा, एक्यूरेसी चेकिंग होगा। तो ट्रेनिंग के बारे में सोचिए कि मैं बोले थे थियोरिटिकली कि जब मशीन लर्निंग प्रोग्राम करेंगे तो मशीन लर्निंग प्रोग्राम में जितना ज्यादा डेटा देके हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट रिटर्न करेगा, इजंट इट? तो देखो, एवरी टाइम जब भी कोई कस्टमर एक्सेस करेगा, तब ट्रेनिंग प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस चलेगा, तो कितना टाइम लगेगा? परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे,
कि at first we write our machine learning model, write machine or ML model program, ML model program लिखेंगे। एक्चुअली ये ML मॉडल प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, एक्यूरेसी चेकिंग, विजुअलाइजेशन सब कुछ कर लेंगे। करने का बाद क्या करना चाहिए, ये जो मॉडल क्रिएट कर रहा हूं, व्हाट इज मॉडल? एक्चुअली मॉडल इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसा यहाँ जो मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट किए थे वो क्या किए थे, एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट, रिग्रेसर ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग हो गया, टेस्टिंग भी हो गया। आफ्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग हम लोगों को क्या करना चाहिए, आफ्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एंड टेस्ट क्या करना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है, हम लोग का ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, एक फाइल में राइट करके रखेंगे, राइट दिस ऑब्जेक्ट इनटू अ फाइल। एक फाइल में राइट करके रखेंगे, क्यों? अच्छा, बाद में बोल रहा हूँ। एक फाइल में राइट करके रखेंगे, क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग कोई वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करें, सॉरी, मे बी दिस इज आवर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप ऐप में ऐसा एक कुछ एप्लीकेशन बना रहा हूँ। जैसा ये प्रोग्राम में हम लोग क्या किए थे कि एक्सपीरियंस इनपुट देंगे तो सैलरी प्रेडिक्ट करके बोल देगा ये मॉडल। तो ऑब्वियसली डेस्कटॉप में इम्प्लीमेंट करना है, तो डेस्कटॉप में ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा कि एंटर एक्सपीरियंस इनपुट देंगे। अब मे बी एक्सपीरियंस, यहाँ में भी एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, यहाँ एक में भी बटन होगा, सबमिट बटन। तो यहाँ में भी एक्सपीरियंस इनपुट देंगे। जब सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो सैलरी प्रेडिक्ट करके आउटपुट देगा। जब सैलरी प्रेडिक्ट करेगा तो हम लोगों को क्या जरूरी है, जैसा आप लोग जब प्रेडिक्ट किए थे, मे बी टेस्टिंग किए थे, सब कुछ किए थे, एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल, तो रिग्रेसर, इफ द रिग्रेसर ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल, तो वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस देके प्रेडिक्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे और यहाँ जो यूजर इनपुट देगा वो वैल्यू पास कर देंगे। तो ये तो क्या रिटर्न करेगा, सैलरी रिटर्न करेगा, उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे अवेलेबल होगा, कि मैं बोल रहा हूँ कि पूरा प्रोग्राम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूरा प्रोग्राम यहाँ लिखेंगे कि फिर से ट्रेनिंग होगा, टेस्टिंग होगा, तो टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एक फाइल में राइट करके स्टोर करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट वे अवेलेबल इन पाइथन। जैसा मैं यहाँ ये मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, पिकल। पिकल इज नॉट अवेलेबल बाय डिफॉल्ट। पिकल मॉड्यूल क्यों यूज कर रहा हूँ, to create a dump, this is called dumping process। ये जो ऑब्जेक्ट को राइट कर रहा हूं, मतलब मीन्स
dump the object into a file. क्यों डंप कर रहा हूं कि डंप करेंगे तो बाद में ये डंप फाइल से ऑब्जेक्ट को रीड करके, बस ऑब्जेक्ट जरूरी है, ट्रेनिंग टेस्टिंग कुछ नहीं करा है, क्योंकि सेपरेटली ट्रेनिंग टेस्टिंग करके मॉडल को टेस्ट कर लिया, बस मॉडल को डंप करके रखेंगे और ये मॉडल को कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी, वेब एप्लीकेशन में भी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्या करेंगे, इसको लोड कर रहे हैं। लोड मीन्स रीड ऑब्जेक्ट फ्रॉम पिकल फाइल। तो ऐसा hd5 बोल के भी एक फाइल है, जैसे जो लिब मॉड्यूल, तो आप लोग नेट में सर्च करेगा तो कभी कभी जो लिब का यूज दिखाएगा, कभी कभी पिकल का यूज दिखाएगा। तो मैं यहाँ जो यूज कर रहा हूँ पिकल मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। दिस इज द मॉड्यूल, पिकल मॉड्यूल। Using this pickle module, actually pickle module provides us different built-in function. Using this built-in function, we create a dump of any object, and later, when we create a dump using the pickle module built-in function, at that time it will create a .pickle file. Maybe name anything. I'll name anything, maybe my model. The file name is .pkl. And remember one thing, students. When we create a dump using .pkl file, objects are, what is happening over here? That is a write operation. Object written in a file. The file name is anything, but extension is pkl, and write the object in binary format. That's why it is not be possible by double clicking on that pickle file and see the code, because all the data are stored, encapsulated inside the object. That's why it will be secure. And after writing this, we can load this pickle file in any platform. So at first we have to know that how to create the pickle file. Then when we develop a desktop application, maybe develop any web application or Android application, we load this pickle file into our application and call the function very easily. Let's see. Obviously, you have to install the pickle. Pickle is not by default available in your environment. If you want to working with this module at that time using Conda or using PIP or using PIP3 command, you have to install this pickle module in your environment. Then what we have to do? Just wait. Acha. And maybe this is our data set. Maybe I want to create a folder in the desktop. Anywhere you can do it. No problem. Folder. The folder name is CIT. Okay. This is our data set.
I think all of you know that previously we are working with that data set. This is the feature and this is the output. And here we write a program. Because in this program, just wait. Desktop CIT. This is simple linear regression program. After creating the model, पहले क्या करेंगे? After creating the model, we test the program, train the model. Manually, we predict the salary also and check it. After that, what we do? Just wait. ये प्रोग्राम सबको आता है, पहले ही किया था. Just wait. Some time. तो सब कुछ चेक कर लिया. तो इसके बाद पिकल फाइल बनाने के लिए और एक प्रोग्राम लिखे हैं. देखो ये सेम प्रोग्राम, इंपोर्ट pandas spd, रीड csv, डेटा फीचर और आउटपुट फेच किए हैं. उसके बाद क्या कर रहा हूँ? स्प्लिट कर रहा हूँ. उसके बाद मॉडल में डेटा को फिट किया. फिट करने के बाद देखो दूसरा प्रोग्राम में तो टेस्टिंग कर लिया. उसके बाद और ज्यादा नहीं लिखना है. क्या कर रहा हूँ? देखो इंपोर्ट पिकल इज द मॉड्यूल. पिकल मॉड्यूल में एक डंप बोल के फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड. और उसके बाद क्या कर रहा हूँ? देखो किसको डंप कर रहा हूँ? ये पूरा प्रोग्राम को नहीं है, सिर्फ रिग्रेसर ऑब्जेक्ट को. ये ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि जहां मे बी आप लोग जब डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करेगा तो ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन कॉल कर देंगे तो वो आउटपुट दे देगा सैलरी. तो इसलिए देखो रिग्रेसर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं? देखो ओपन में भी इसको लिख रहा हूं कि फाइल नेम इज एनीथिंग कि CIT model, but extension in case of pickle extension should be .pkl. That is L, not I. PKL, pickle file. देखो we dump means we write this regressor object into that file. That's why I think all of you know that how to write the data into the file in case of Python. फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे? तो देखो वहां भी एक ओपन मेथड है. क्या कर रहा हूं? ये फाइल में डंप करे हैं. मोड क्या है? राइट ऑपरेशन, राइट कर रहा हूं इन बाइनरी मोड. W represent right, B represent binary. Now save the program. CIT desktop CIT ये लिख रहा हूं for create pickle file, PICKL pickle file. तो मतलब एक प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या करेगा? जैसे देखो CIT फोल्डर, ये डेटा सेट है. पहले लिनियर रिग्रेशन प्रोग्राम करके सब कुछ टेस्ट कर लिया, ट्रेनिंग कर लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया. उसके बाद एक प्रोग्राम लिखे हैं पिकल फाइल क्रिएट करने के लिए. तो पिकल फाइल क्रिएट करेंगे तो ये प्रोग्राम रन करेंगे तो क्या होगा? वो सेम डायरेक्टरी में एक .pkl फाइल क्रिएट करेगा. सो वी एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम नाउ. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, check the folder, the pickle file created or not. The pickle file is created now. तो देखो पिकल फाइल क्रिएट करने के बाद जैसा आप में भी डेटा, ऐसा रियल लाइफ इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसा एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टूडेंट सब कुछ काम करते हैं. लेकिन इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं है. हर एक स्टूडेंट एम्प्लॉय का एक स्पेसिफिक जॉब है. एक ही आदमी सब कुछ करेगा तो होगा नहीं. इतना छोटा प्रोग्राम तो होता नहीं है. बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो होता है, टाइम लगता है. तो इसलिए एज ए डेटा एनालिसिस्ट क्या करेगा? एक पिकल फाइल बना के वो पिकल फाइल
जो लोग वेब डेवलप कर रहे हैं, डेस्कटॉप डेवलप कर रहे हैं, वो लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो जो लोग डेस्कटॉप डेवलप करेगा तो क्या करना चाहिए, ये फाइल को कॉपी कर लेना चाहिए, कॉपी करके वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज करना चाहिए। तो देखो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जब यूज करेंगे, थोड़ा सा डेस्कटॉप एप्लीकेशन का आइडिया भी जरूरी है। तो हाउ टू क्रिएट द पिकल फाइल, ये समझ में आया सबको स्टूडेंट्स? एनीवन, एनी डाउट्स? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल को इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, कोई यूजर इंटरफेस नहीं है तो सिंपल यूजर एक्सेस कैसे करेगा? अब बोलेगा ये सब क्या है, ये कोडिंग क्या लिखेगा, है ना? तो ये समझ में आया सबको? एनीवन, एनी डाउट्स, एनी क्वेरी? तो इसके बाद देखेंगे कि मैं भी एक सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो लोगों को आता नहीं तो उन लोगों को भी दिखाएंगे। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना के ये पिकल फाइल को यूज करके हम लोग सैलरी एडिट करके चेक कराएंगे। ओके, अच्छा इतना तक सबको समझ में आ गया? नो डाउट्स? अच्छा, नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द डिटेल्स ऑफ desktop application using Tkinter. There are different modules available like PyQt, Qt, Tkinter, etc. Using this module, actually there are some built-in functions available. Using this function, we create a desktop application. At first, we learn how to create desktop application. Then we learn how to implement the pickle module in desktop application. Huh? Let's see. अच्छा एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। हाँ, जो भी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कीजिएगा। GUI मतलब क्या है? जस्ट वेट। यहाँ एक भार्सन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो प्रोग्राम को जब रन कर रहा हूँ तो ये कैसा आ रहा है, ये एक्चुअली GUI आ रहा है। जैसा कैलकुलेटर देखे थे ऐसा पहले एक GUI आएगा। तो ये GUI कैसे क्रिएट करेंगे, तो एक बार देख लीजिएगा। ये वर्जन रिलेटेड इशू भी आएगा कोई कोई सिस्टम में, क्योंकि टीके इंटर कोई कोई वर्जन में कैपिटल केस में डिफाइंड है, कोई कोई वर्जन में लोअर केस में डिफाइंड है। ओके, तो देखिए यहाँ क्या किए हैं, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार, मतलब टीके इंटर मॉड्यूल, इसमें सब प्रीडिफाइंड फंक्शन है, क्लास भी है। तो जब वो जो यूजर इंटरफेस, जब प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो ऐसा एक यूजर इंटरफेस क्रिएट कर रहा है। तो ये यूजर इंटरफेस में टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ये सब क्रिएट करेंगे। तो ये यूजर इंटरफेस लॉन्च कैसे होगा, तो क्या कर रहा हूँ, देखो टीके इज ए बिल्ट इन क्लास। तो ये टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद देखो रूट डॉट मेन लूप, मतलब ये जो यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप में लोड होगा तो एक इनफाइनाइट लूप जैसा है। क्योंकि देखो अभी जब रन किए हैं, देखो प्रोग्राम इन रन मोड, देखो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। जब इसको क्लोज कर रहा हूँ तो देखो तब प्रोग्राम एंड हुआ।
तो नेक्स्ट कमेंट में आ गया। तो इसलिए देखो पहले एक टीके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्या कोड लिखना है, जब इसमें कुछ इनिशियलाइज करना है, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल, रेडियो बटन, डिफरेंट कंट्रोल्स आर अवेलेबल एंड ऑल द कंट्रोल्स आर डिफाइंड एज अ क्लास। तो पहले टीके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, सब कुछ इनिशियलाइज करेंगे बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। At the end, we call this root.main loop. And now if we execute, it will load the GUI. तो अभी कुछ टेक्स्ट बॉक्स ये सब ऐड नहीं किया, बाद में करेंगे। तो जो बेसिक प्रोग्राम होगा तो इसमें ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को थोड़ा स्टडी करो पहले। देखो टीके 9 नंबर 1 टीके इंटर फ्रेंड स्टार्ट। अच्छा इसको और छोटा कर रहा हूँ पहले, जो लोगों को आता नहीं है समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो रूट टीके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। रूट डॉट जियोमेट्री एक बिल्ट इन फंक्शन है। ओके जस्ट वेट। देखो रूट डॉट जियोमेट्री, जैसा मैं भी व्हाट इज दिस, जब प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ देखो ये एक यूजर इंटरफेस लोड हुआ है, लेकिन इसका साइज देखो पहले से ज्यादा हो गया। व्हाट इज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द GUI, तो वो मेंटेन करने के लिए रूट डॉट जियोमेट्री 600 by 500 पिक्सल। रूट डॉट टाइटल मतलब टाइटल सेट कर रहा हूँ, टाइटल में भी AEC में भी एनीथिंग। उसके बाद देखो ये जो GUI है इसमें 2 बटन ऐड किए हैं। बटन कैसे ऐड करेंगे, तो जितना बटन जितना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे सब एज ए क्लास डिफाइंड है टीके इंटर मॉड्यूल में। तो हम लोग यहाँ क्या किए हैं, देखो एक बटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें देखो किसके लिए ये बटन ऑब्जेक्ट किसके लिए क्रिएट किए हैं, वो रूट ऑब्जेक्ट के लिए। तो फर्स्ट पैरामीटर रेफरेंस फॉर व्हाट वी क्रिएट दिस बटन रूट ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट मतलब जो डिस्प्ले करेगा देखो ओके विथ एनीथिंग पिक्सल। उसके बाद देखो और एक बटन कैंसिल बटन, इसके लिए रूट। टेक्स्ट इक्वल टू कैंसिल, कमेंट इक्वल टू रूट डॉट डिस्ट्रॉय। ये कमेंट का मतलब क्या है कि बटन में जब क्लिक करेंगे, जब ये कैंसिल बटन में क्लिक करेंगे, देखो क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्या हुआ रूट डॉट डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय। ये भी बिल्ट इन फंक्शन है कि जो GUI है उसको क्लोज करना है, तो कैंसिल बटन क्लिक करेंगे तो GUI क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा देखो 2 बटन क्रिएट किए हैं, तो बटन क्रिएट करने के बाद हम लोगों को तो कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि ये 2 बटन को प्लेस कहाँ करेंगे। ये टोटल GUI है। एक्चुअली ये जो GUI है, GUI इज नथिंग बट लाइक दिस। GUI मतलब लाइक दिस। तो जब बटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये सब बटन यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, ये सब नहीं आएगा। एक्चुअली व्हाट इज दिस GUI? By default, GUI provides us a grid system. Grid system means it is nothing but a collection of rows and columns like this. Okay, rows, collection of rows and columns like this maybe. ये by default provide करता है हम लोग। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक एक सेल में हम लोगों को वो बटन को प्लेस करना चाहिए। हाउ टू डू दैट,
Let's see. देखो content, what is content? A button, this button. We place this button. देखो content.grid function actually totally ये जो GUI है ये grid system provide करता है, मतलब collection of rows and columns provide करता है। तो content.grid मतलब ये जो content button मतलब OK button को कहाँ place कर रहा हूँ? column 0 row 0 मतलब think about it. This is a matrix, like a matrix. What is the cell value for this? 0 0. Sorry, means row number 0, column number 0. What is this? Row number 0 but column number 1 in this way. So based on our requirement we have to place the button in particular cell. How to do that? देखो content.grid column number 0 row number 0 cancel.grid मतलब cancel बटन को कहाँ प्लेस कर रहा हूँ? column 0 row number 1 तो इसलिए नीचे आ रहा है, लेकिन इसको column 1 row 0 करेंगे तो कहाँ आएगा? चेक द आउटपुट। देखो साइड सेम रो बस कॉलम नंबर चेंज कर दिया तो साइड बाई साइड आ रहा है। बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट प्लेस द बटन। ओके उसके बाद देखो जैसा यहाँ कमांड इक्वल टू रूट डॉट डिस्ट्रॉय कर दिया तो कैंसिल बटन क्लिक करने से डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट है कि ये ओके बटन क्लिक करेंगे तो हमको कुछ करना चाहिए। हाउ टू डू दैट? तो इसलिए देखो यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किए हैं। जस्ट वेट, देखो डिफाइन प्रिंट इट एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन कब कॉल होगा वो कहाँ देंगे? देखो कंटेंट बटन में क्या ऐड किया? कमेंट प्रिंट इट, मतलब जब ये कंटेंट बटन में क्लिक करेंगे तो वो एक्चुअली कमेंट प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करता है। ओके क्या करेगा? प्रिंट इट फंक्शन कॉल करेगा। तो प्रिंट इट फंक्शन क्या करे? देखो प्रिंट दिस इज रियली कूल। तो इसलिए देखो जब ये प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, जब ओके बटन क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ प्रिंट हो रहा है दिस इज रियली कूल, दिस इज रियली कूल। So in this way we add multiple component in the GUI and based on our requirement। तो देखो यहाँ जो फंक्शन हो रहा है तो ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रीड करेंगे, उसके बाद मॉडल ऑब्जेक्ट को लोड करेंगे, लोड करने का बाद वो प्रेडिक्ट फंक्शन कॉल करके वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वो सब डिटेल्स में दिखा दूंगा कि कैसे वो पिकल फाइल को यूज करेंगे। हाँ अच्छा, जो लोगों को टिकेंट आता नहीं है वो लोगों को समझ में आया? थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमको तो बहुत डाउट्स आ रहा है कि सब लोग प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में तो ये सब चेक करने का फैसिलिटी नहीं है। ऑल ऑफ यू गॉट इट स्टूडेंट्स? एनीवन एनी डाउट्स एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू गॉट इट? अच्छा से समझ में आया आज का जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं? If anyone have any query, any question, raise your question in the chat box, because this is the communication point only. Otherwise it is very difficult to guess that whether all of you got the topics or not। हाँ और इसको मैं GUI में दिखा रहा हूँ तो वेब में भी कर सकते हैं जैसा फ्लास्क, जेंगो। तो लेकिन वो वेब एप्लीकेशन आपको सीखना चाहिए। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन मोर इजियर। तो पहले वेब में इम्प्लीमेंट करना है तो पहले वेब एप्लीकेशन सीखना चाहिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So anyone any doubts, any query, and raise your